Hello everyone, welcome back to second part of chapter number 1, that is chemical reactions and equations. In the previous video, that is the part 1 of this chapter, we discussed about the chemical reactions in daily life, proof of chemical reaction, how to write a chemical equation and balanced chemical equation. Okay, so the topic of this video is types of chemical reactions. Okay, इस वीडियो में हम जितने भी टाइप के chemical reactions है with examples हम उनकी स्टडी करेंगे. So here are the types of chemical equations, and before starting it let me tell you that all these chemical equations which we are studying here, लेकिन जितने भी chemical reactions हैं जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले, जितने भी types हैं, these types are solely based on the NCERT topics. Okay, आपके इस chapter में जितने भी NCERT topics में cover किए हुए chemical reactions हैं, ये सब वही है. So basically we have 6 types of chemical reactions. Okay, the first one is combination reaction. Second one is decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, neutralization reaction, and oxidation reduction reactions. We will be studying all these 6 types of chemical reactions. हम ये सारे 6 टाइप के chemical reactions को पढ़ेंगे with their examples. So let's start with the very first reaction, that is the very first topic, that is combination reaction. Okay. Coming to the definition, reactions in which 2 or more reactants combine to form one product are called combination reaction. Okay, ऐसे reaction जिनमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा reactants react करते हैं और एक product बनाते हैं, उसको हम combination reaction बोलते हैं. A general combination reaction can be represented by the chemical equation given here, that is A plus B gives you AB. Okay, so here हमारे पास एक reactant है, उसका नाम A है, एंड वी हैव अनदर रिएक्टेंट विच इज़ डिनोटेड बाय B. जब A और B के बीच में रिएक्शन होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट AB. ओके, ये A और B दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द एयर दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन. ओके, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के एग्जाम्पल है. See, we have 2 reactants here, magnesium plus oxygen. हमारे पास यहाँ 2 reactants हैं, magnesium and oxygen. जब ये दोनों react करते हैं, combine करते हैं, तो हमारे पास magnesium oxide बन के आता है. Okay, we have another example. When carbon is burnt in oxygen, carbon dioxide is formed. In this reaction, carbon is combined with the oxygen. So here also we have 2 reactants, carbon plus oxygen. हमारे पास यहाँ भी 2 reactants है, carbon and oxygen. जब ये दोनों combine होते हैं तो हमारे पास carbon dioxide बन के आता है. So these are the very 2 basic examples of combination reaction in nature. Now let's come to the second topic, that is second type of chemical reaction, that is decomposition reaction. Okay, so if we break this word decomposition, अगर हम decomposition word को break करें तो हमारे पास 2 words बन के आते हैं, D and composition. D means breaking and composition means type of compound. तो अगर हम किसी compound को break करते हैं तो उसका decomposition होता है. Fine. So as the name says, let's look at the definition of decomposition reaction. Reactions which are in which one compound decomposes in 2 or more compounds or elements are known as decomposition reaction. A decomposition reaction is just the opposite of combination reaction. Fine. हमने जो combination reaction पढ़ा अभी, जिसमें A और B मिलके प्रोडक्ट AB बनाते हैं, ये जो decomposition reaction होता है उसका just opposite होता है. It is given by the general chemical equation as AB decomposes into A plus B. हमारे पास एक पहले से कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नेम है AB. ओके, हम उसको डिकम्पोज करेंगे किसी भी मेथड से. हम उसको हीट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, लाइट दे सकते हैं, कोई भी एनर्जी सोर्स दे के जब हम AB को डिकम्पोज करेंगे तो ये जो AB है A प्लस B में डिसएसोसिएट हो जाएगा. सो दिस इज the basic of a decomposition reaction. Let's take an example. When calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. हमारे पास यहाँ पे chemical equation है, CaCO3, this is calcium carbonate, CaO calcium oxide plus CO2 carbon dioxide. जब calcium carbonate को हम heat करते हैं तो calcium oxide और carbon dioxide में
चेंज हो जाता है. ओके, let's take another example. When ferric hydroxide is heated, it decomposes into ferric oxide and water. See, ferric hydroxide, FeOH, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा. ओके, सो नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे मैंने बोला कि किसी भी कंपाउंड को हम डिकम्पोज करने के लिए अलग अलग एनर्जी इनपुट्स को यूज़ कर सकते हैं. सो वी हैव अ वेरी common decomposition type, that is thermal decomposition. The decomposition of a substance on heating is known as thermal decomposition. जब हम किसी भी कंपाउंड को हीट दे के ब्रेक करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल PbNO3, दैट इज लेड नाइट्रेट, व्हेन इट इज़ हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. ठीक है, जब हम लेड नाइट्रेट सॉलिड को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाता है. अनदर टाइप ऑफ decomposition reaction is electrolytic decomposition. Okay, reactions in which compounds decompose into simpler compounds because of passing of electricity are known as electrolytic decomposition. This is also known as electrolysis. अगर हम किसी कंपाउंड को उसके रिएक्टेंट्स में ब्रेक करें सिंपल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर इट डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर हम अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो अपने फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज़ वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है. सी हियर वी हैव अ पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. जैसा कि हमें पता है कि जो वाटर का जनरल फार्मूला होता है दैट इज़ H2O. दिस मीन्स इसमें दो आयंस कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. सो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स है, कैथोड एंड एनोड. एज वी कैन सी इन द पिक्चर, कैथोड इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एनोड इज़ ऑन द राइट हैंड साइड. तो जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होगा फॉर ऑब्वियस. ओके, एंड हाइड्रोजन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड. हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ. एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा. एनोड इज अ इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर positive charge, and we have already discussed in the previous classes that negative charges attract each other. So cathode पे hydrogen collect होगा, anode पे oxygen collect होगा. So we can easily break the molecule of water into its further constituents like hydrogen and oxygen gas. We have another type of decomposition reaction, that is photolysis or photodecomposition reaction. Okay, एज द नेम सजेस्ट, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये जो लाइट की हेल्प से होता है. फोटो मीन्स लाइट. ओके, लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो सनलाइट की हेल्प या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. Example, when silver chloride is put in sunlight, it decomposes into silver metal and chlorine gas. अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो वो सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है. वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशन, AgCl, सिल्वर क्लोराइड. रिमेंबर Ag is the symbol of silver. Okay, it decomposes into silver plus chlorine gas. Okay, फोटोग्राफिक पेपर, वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट फोटोग्राफिक पेपर जो हमारे पास पहले नेगेटिव्स हुआ करते थे. दिस फोटोग्राफिक पेपर हैज़ अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट. इट हैपन्स because silver chloride is colorless when silver is a gray metal. Okay, let's come to our next topic or another type of chemical reaction, that is displacement reaction. Okay, just look at the definition first. The chemical reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element from a compound is known as displacement reaction. Displacement reactions are also known as substitution reactions or single displacement or replacement reactions also. Okay,
डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट, व्हेन यू रिमूव समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस। तो इस केमिकल रिएक्शन में भी यही होता है, जब एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट अपने से वीक एलिमेंट को एक केमिकल रिएक्शन में रिमूव कर देता है, हटा के उसकी जगह ले लेता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Okay, before coming to displacement reaction and discussing it, we should know that which element is stronger from which one. हमें पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन से एलिमेंट कम रिएक्टिव है। सो टू हेल्प फॉर दिस, यहाँ पे एक पिक्चर है आपके पास। ओके, इसमें आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी बताई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द पिक्चर, पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड गोल्ड इज़ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सी द एरो इज डाउन टू अपसाइड। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है और जो गोल्ड होता है सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है। अगर हम गोल्ड से सिल्वर की तरफ बढ़े तो ये थोड़ा रिएक्टिव होता है, देन कॉपर, देन फर्दर गोइंग एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज पोटेशियम। फाइन, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस करेगा बट सोडियम पोटेशियम को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन and this series is known as reactivity series. See, the definition is the reactivity series allows us to predict how metals will react. एक reactivity series से हमें पता चलता है कि metals कैसे react करेंगे। And the general rule is this: a more reactive element or metal displaces less reactive metal. जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को एक केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देता है। ओके, इसी पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड में जो लिस्ट है ये आप रिमेंबर करने के लिए, हाउ वी कैन इजीली रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, so this is definitely going to help you out remembering the reactivity series. Let's come back to displacement reaction. A general displacement reaction can be represented by using a chemical equation as follows. Okay, A plus BC gives you AC plus B. Okay, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A and BC। जब इन दोनों में रिएक्शन हुआ, A combined with the C and it replaced B. Okay, जब इन दोनों में रिएक्शन हुआ तो A C के साथ कंबाइन हो गया और उसने B को रिप्लेस कर दिया अपनी जगह से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली व्हेन A इज़ मोर रिएक्टिव देन B। तो हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जब रिएक्शन हुआ तो जो A है वो B से ज़्यादा रिएक्टिव था, तभी वो B को रिप्लेस कर पाया। If B is more reactive than A, then A will not displace C from BC and reaction will not be taking place. अगर B ज़्यादा रिएक्टिव होता तो A कभी उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। अनदर एग्जाम्पल वी आर हैविंग, जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ decomposition reaction. The fourth chemical reaction we are having is double displacement reaction. Okay, so what is double displacement reaction? Reactions in which ions are exchanged between the two reactants forming a new compound are called double displacement reaction. Okay, double displacement reaction एक ऐसा chemical reaction है जिसमें दो reactants के salts exchange हो जाते हैं या फिर जो दो reactants के ions है वो exchange हो जाते हैं। For example, it is denoted by the chemical equation as AB plus CD gives you AC plus BD. Okay, example is this: when the solution of barium chloride reacts with the solution of sodium sulfate, white precipitate of barium sulfate is formed along with the sodium chloride. हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है यहाँ पे जिसको हम देख सकते हैं। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन होता है तब बेरियम सल्फेट बनता है और जिंक क्लोराइड बनता है। इसका मतलब दोनों रिएक्टेंट्स बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे सॉल्ट डिस्प्लेस तो हो रहा है बट वो एक्सचेंज हो रहा है।
When sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid, sodium chloride and water are formed. NaOH plus HCl gives you NaCl plus H2O. सोडियम हाइड्रोक्साइड और जब HCl रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा एंड वाटर बनेगा. Now we have a point to note. Double displacement reaction in which precipitate is formed is also known as precipitation reaction. जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है बेरियम सल्फेट जिसमें फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. तो ऐसे इक्वेशंस को हम, ऐसे रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं जिसमें वाइट पाउडरी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. So next type of chemical reaction we are having is neutralization reaction. Let's look at the definition. The reactions in which an acid reacts with a base to form salt and water by an exchange of ions is called neutralization reaction. Neutralization reaction एक ऐसा chemical reaction होता है जिसमें एक acid और एक base combine करके salt और water form करते हैं. For example, we are having sodium hydroxide plus hydrochloric acid gives you sodium chloride plus water. NaOH is your सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है वो और वाटर प्रोड्यूस करेगा. नाउ नेक्स्ट वन वी आर हैविंग इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? लेट्स रीड इट आउट. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन or metallic element from a compound is known as oxidation reaction. See, ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं. ओके. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज. और जिन एलिमेंट से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उस एलिमेंट को हम ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट बोलेंगे. ओके. देन वी हैव रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन. अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, फाइन, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीजन. हमने ऑक्सीडेशन में क्या किया? ऑक्सीजन ऐड किया या फिर हाइड्रोजन रिमूव किया. रिडक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे. और वो कंपाउंड जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं उस कंपाउंड को हम रिड्यूस्ड एलिमेंट बोलेंगे. एंड वन थिंग टू कीप इन माइंड, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर. किसी भी केमिकल इक्वेशन में ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन अलग से हो रहा है, रिडक्शन अलग से हो रहा, नहीं. अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सो दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन अ सिंगल केमिकल रिएक्शन. सो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फाइन. बोथ द थिंग्स वी कैन कंसिडर. कोई ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं, प्लस कोई ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं. सेम विद द रिड्यूसिंग एजेंट. द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, दोनों को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स बोल सकते हैं. द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं, साथ साथ प्रोसीड करते हैं, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं. सी, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, वी हैव अ केमिकल रिएक्शन हियर. जब कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं देन कॉपर मेटल इन वाटर आर फॉर्म्ड. इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू कॉपर. यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है, मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन हटाया जा रहा है. ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. So copper oxide is being reduced to copper. In this reaction, H2 is changing to H2O. Oxygen is being added to hydrogen. Addition of oxygen to a substance is called oxidation.
सो हाइड्रोजन इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. ओके, अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखें तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है. इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो वाटर में चेंज हो रहा है. इसका मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है. सो हियर वी कैन से दैट रिडक्शन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन आर गोइंग हैंड इन हैंड. दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं. तो दिस इज़ अ वेरी simple and a quick example of redox reaction. Okay, the substance which gets oxidized is reducing agent. The substance which get reduced is also oxidizing agent. Okay, so here we have come to the end of the topic of the part 2. Okay, now in the third video we will be discussing about the इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ. जो हमारा थर्ड वीडियो होगा उसमें हम ऑक्सीडेशन का जो डेली लाइफ में इम्पैक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे. दैट इज़ करोजन एंड रेंसिडिटी. ओके, so just let go through this video, and you have any doubt or any problem, you can just drop down the comments or always ask me. Okay, I'm here to help you out. So stay safe, keep studying, keep growing. Thank you.